ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब रिकॉर्डिंग मैंने ऑन कर दी है। अब हम आज के सेशन में हम एक नया स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक। इससे पहले हम फोकस कर रहे थे एम्बेडेड सिस्टम के ऊपर। अब हमारा फोकस जो है वो यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज के ऊपर होगा। और अब जो कुछ लेक्चर्स आएंगे वो प्राइमरीली यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज और उसकी जो डायग्राम्स हैं उनके पर्सपेक्टिव में होंगे। तो आज का सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। अगर किसी के ज़हन में कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है, जो इससे पहले लेक्चर हो चुके हैं। ओके, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो अब हम चलते हैं। इट्स जनरल पर्पस मॉडलिंग लैंग्वेज यूजुअली यूज फॉर सॉफ्टवेयर इंटेंसिव सिस्टम्स। इसका एक लोगो भी है और एक वेबसाइट है। So in this session, which is basically an introduction to UML, we learn the basics. And if a UML diagram is given to us, we can explain different elements of the diagram. And then we want to actually apply the concept to model simple real-time embedded system, जो कि हम learn करेंगे। Okay, first of all, why it is important to learn a language like UML? Because it is focused or concentrate on a model-based approach. Because models reduce complexity, they provide a diverse view of the system. They allow early correction of flaws, and they offer concrete context for communication inside the system. So these are some of the benefits when we talk about the model approach. This is a diagram which shows commonly used UML diagrams. So there are a number of diagrams in under the UML. As we can see, they are roughly divided into two components. One is the architecture or structure specific diagram, and another is the functional or behavior type diagram. So if we go inside the structural diagram, we have a class diagram, package diagram, and similarly the object diagram. ये चीज़ें हम सीखेंगे आज के सेशन में। Composite structure diagram, component diagram, and deployment diagram. क्लास डायग्राम पे हम फोकस करेंगे आज। यूज केस डायग्राम, स्टेट डायग्राम जो कि स्टेट मशीन होती है प्राइमरीली, सीक्वेंस एंड एक्टिविटी डायग्राम। कुछ चीज़ें हम पहले से जानते हैं। सीक्वेंस डायग्राम आमतौर पर टाइमिंग डायग्राम की एक फॉर्म है। एंड सिमिलरली वर्क फ्लोज जो कि एक्टिविटी बेस्ड होते हैं। सो these are the diagrams which are commonly used in UML. So UML diagram represents two different views of a system model. Remember कि हम real time embedded system की बात कर रहे हैं और उसके साथ साथ हम सॉफ्टवेयर इंटेंसिव जो UML डायग्राम अप्रोच और कम्युनिकेशन, यानी जो तीनों चीज़ें हैं उनके पर्सपेक्टिव में बात हो रही है। रियल टाइम एम्बेडेड सिस्टम के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है और इसके साथ साथ जो है वो जो कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट एंटिटीज़, यानी डायग्राम के अंदर जो डिफरेंट एंटिटीज़ हैं उनके दरमियान कम्युनिकेशन की बात हो रही है। और UML का चूँकि ज़्यादातर जो एप्लीकेशन है वो सॉफ्टवेयर इंटेंसिव सिस्टम्स पे है, तो इट प्रीटी मच कवर्स a vast discipline. So there are two type of views. One is called the static structure view, जैसे हमारे पास किसी घर का मैप होता है, एंड देन ए डायनामिक व्यू which is primarily a functional view. So now some history and the relation with the object oriented programming. And there is also because the concept of the class and the object is used, so
which is almost same as used in the object-oriented programming. So the modular programming provide the basis for the object-oriented programming, जिसमें जो चीज़ें हैं मुख्तलिफ जो कंसेप्ट हैं वो इंट्रोड्यूस किए गए लाइक ऑब्जेक्ट क्लासेस एंड द इनहेरिटेंस. हमारे पास क्लासेस होती हैं और क्लासेस को हम इंस्टेंशिएट करते हैं और इसी तरीके से हमारे पास जो है वो इनहेरिटेंस होती है. ये चीज़ें हम जान चुके हैं पहले किसी एक लेक्चर में जिसमें हमने एक बाइसाइकिल की एग्जांपल दी थी और उसके अंदर हमने देखा था कि क्लास से इनहेरिटेंस कैसे ड्राइव होती है. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग अप्रोच इज डेवलप्ड बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग although they are not equivalent but many concepts are the same. So it is primarily based on the collection of the modeling concept to model a problem domain as interacting objects. Okay, why there is a use of unified modeling language and why it is popular in industry? Because it is used to develop the software and systems, and for software intensive systems, even जब आगा खान का हम विजिट कर रहे थे तो उसमें भी हमने देखा कि they are using UML based approach to develop their hospital different processes in the hospital system. And because model and build systems that vary in scope, and also it has a focus on real-time embedded systems. So these are some of the reasons why a UML approach is part of this subject. So something about object classes and interfaces. So object is nothing but a data structure which has some attributes and some methods. So the features which are primarily data parts, the attributes and methods are collectively known as features, and that feature is associated with the object. And the अगर हम feature को थोड़ा सा explore करें तो it has two attributes and methods. Attributes are the data parts, whereas methods are the services on the data in the form of functions, in the form of subroutines inside the data structure. So class specifies a set of objects sharing common structure, behavior and behavior. तो जो क्लासेस हैं वो प्राइमरीली सुपर सेट है ऑब्जेक्ट्स का जिनके अंदर मल्टीपल डेटा स्ट्रक्चर हो सकते हैं. एक यूनिटी के लिए कि शेयर कॉमन स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर. ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास. ये एक डिफरेंट डेफिनेशन है. ये भी प्राइमरीली जो है वो लिंक करती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्टेक्स्ट में. इंटरफेस इज अ नेम कलेक्शन ऑफ सर्विसेज. हाउ वी primarily access different services inside the class. So there are two type of services. One is the operational type, which are the synchronous, and the event reception, which are the asynchronous. थोड़ा interrupt के साथ इनका relation बन सकता है. Interrupts are synchronous and asynchronous. Asynchronous interrupts are those which are due to external devices. अच्छा, इस डायग्राम को थोड़ा सा हम समझते हैं कि इसमें अगर हम देखें सबसे पहले क्लास की बात करेंगे. ये जो क्लास है प्राइमरली ये बड़े बॉक्स की सूरत में नज़र आ रही है और इसके ऊपर इसका जो है वो टाइटल है. दिस क्लास इज प्राइमरली हैज ए नेम व्हिच इज डिलीवरी कंट्रोलर. इट हैज मल्टीपल एट्रीब्यूट्स और एट्रीब्यूट्स जो है उसके नीचे ही दिए हुए हैं. और एट्रीब्यूट्स में क्या है, कमांड, कंसंट्रेशन और इसकी टाइप दी हुई है डबल. अगर हम सी लैंग्वेज के प्रोग्राम से फेमिलियर हैं तो हमें पता है कि जब भी हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसके साथ हम डेटा टाइप भी बताते हैं. सिमिलरली एक्टिव रिजर्वायर इज द नेम ऑफ द वेरिएबल and the type is the integer. Similarly, there is selected agent and the type is the agent type, is a custom data type. So there are methods inside this class, which methods are written on the bottom of this box. Select agent
और ये फंक्शन जो है इसके अंदर ये एक इनपुट लेगा और इसकी आउटपुट नहीं होगी। सो सिमिलरली another function set concentration, get value, set selection and select. So a class when appear inside a UML diagram, it has a name, it has attributes, it has methods, and similarly we can see other classes like agent reservoir class, and this class is given here, but no attributes or methods are specified. So it is possible that a class is there in a UML diagram, but without any attributes and methods. और बहुत सारी डायग्राम्स में आप देखेंगे डायग्राम में फोकस होगा सिर्फ उसी डायग्राम को प्राइमरली उसके तमाम चीज़ें बताई गई होंगी और बाकी चीज़ें जिनके साथ लिंक होगा उनके बारे में ज़्यादा डिटेल जो है वो डायग्राम के अंदर मौजूद नहीं होगी, तो उनकी फिर रिस्पेक्टिव डायग्राम के अंदर मौजूद होगी। तो इस डायग्राम में जो चीज़ हमने समझनी और सीखनी है और वो प्राइमरली ये तीन चीज़ें हैं, क्लास नेम, और प्राइमरली ये जो नेम है ये एक ऑब्जेक्ट को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, एट्रीब्यूट्स डेटा टाइप्स जो उसके अंदर मौजूद है, मेथड्स जो उसके अंदर फंक्शंस मौजूद हैं, एंड सिमिलरली इट हैज़ ए लिंक one to one link to other object classes, and similarly at some point in time it has one to more than one, steric mean more than one or more than one. It may also zero to many in some cases, और कुछ केसेस में बता भी दिया जाता है, जैसे राइट साइड में अगर आप देखें तो जैसे ये आइकॉनिक व्यू जो क्लास है इट हैज़ either 0 or 1 link to the reservoir class. So it is possible that there is no input is coming or going, and it is possible that there is a one-to-one link, and it is possible there is one-to-many link, and it is also possible that many-to-one link is also possible. So इट इज इस चीज़ को हम मज़ीद डिस्कस करेंगे आने वाली स्लाइड्स में, ये जो इसके कम्युनिकेशन लिंक्स हैं। अभी हम इसी चीज़ पे फोकस करते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ मैं एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहूँगा, अगर आपके ज़हन में कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। अभी तक हमने सिर्फ ऑब्जेक्ट क्लास का यूएमएल में स्टडी किया है। आज तो क्लास की ऑलमोस्ट पूरी स्ट्रेंथ है, सिर्फ एक स्टूडेंट जो है वो कम है। सब लोगों के नाम लिख लेता हूँ मैं अपने अटेंडेंस के पर्सपेक्टिव में। जी, आप में से कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं? अब्दुल वहाब। नहीं सर, मेरा कोई सवाल नहीं है। थैंक यू। इसके बाद मैं वकास से, जी बेटा बोले। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। नहीं सर, सवाल नहीं है, मुझे बताएं कि अभी दोबारा से सेशन स्टार्ट होगा? नहीं, ये सेशन ख़त्म हो जाएगा, आज स्मॉल सेशन ही रखा है। असल में लाइट भी आज अभी थोड़ी देर पहले ही वो ब्रेक हो गया था, और जो है वो अभी थोड़ी भाग दौड़ भी हुई है सुबह ही एक काम की वजह से। तो थोड़ा सा सेशन जो है वो हम स्मॉल ही रखेंगे, ये इंट्रोडक्टरी है, और आप देखेंगे कि ये बहुत आसान है, इतना ज़्यादा परेशानी नहीं है। जो चीज़ें मैं फोकस जिन चीज़ों पे कर रहा हूँ आप उन्हीं चीज़ों को थोड़ा सा ज़रा ज़हन में रखिएगा, तो चीज़ें बहुत आसान। अदील, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर मुझे ये पूछना था कि क्लास क्या 11:30 बजे शुरू हुई है या इससे पहले हो चुकी थी? नहीं, हमने क्लास का टाइम 11:30 बजे रखा हुआ। ओके सर, मुझे यही पूछना था। चले, अच्छा है, आप माशाल्लाह। वकास कुछ कहना चाह रहे थे? वकास, आप कुछ बात करना चाह रहे हैं? नहीं सर, मैंने वही पूछना था। आपने कहा था ना अभी हम थोड़ी देर में ब्रेक ले रहे हैं, तो मैं इसलिए बस ये पूछा था कि दोबारा से सेशन होगा या बस ये जस्ट एंड हो? दोबारा नहीं होगा, असल में जो है वो हमने सेशन ज़्यादा एक्सटेंसिव नहीं रखे हुए। ओके, बासित कुछ कहना चाह रहे हैं?
जी बासित, आप कुछ कहना चाह, अच्छा मैसेज आ गया उनका। फरहान, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आज हमारे साथ कौन है। ओके, बासित का मैसेज आ गया हमारे पास। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कौन जो है वो आज नहीं मौजूद, क्योंकि क्लास में एक स्टूडेंट जो है वो कम है। नहीं हो। तो सर वैसे आज मेरी पहली क्लास है, इससे पहले मैं अटेंड नहीं कर सका हूँ कोई भी क्लास। कोई बात नहीं। अदिल, आप के अलावा एक स्टूडेंट कम है, और देख लेते हैं अभी वो कौन है जो कम। टोटल स्ट्रेंथ कितनी है सर? 7 स्टूडेंट है इस क्लास में। आई थिंक सर 6 सम स्टूडेंट हैं इस वक्त। इस वक्त स्टूडेंट 6 है, एक कम है। जी सर, अब उसका देखते हैं, जो कम है उनको बता देते हैं सर। 1 मिनट अगर आप मुझे दें, मैं 1 मिनट के लिए देख लेते हैं कि ठीक है सर, आप देख लें भले। 1 मिनट दे दें। चारों दोस्त ये तो मौजूद हैं। अब्दुल वहाब भी हैं आज तो। अवैस और मुनीर भी हैं। अवैस नहीं है तो अवैस को कोई जानते हैं? मोहम्मद अवैस हसन को? जी, सर शायद मैं जानता हूँ, मैं इन्फॉर्म कर दूंगा उन्हें। आप उन्हें इन्फॉर्म कर दीजिएगा। इस तरह हमारे जी जी। पास स्ट्रेंथ कंप्लीट हो जाएगा। ये बहुत अच्छा हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आदिल सर, आपका बहुत शुक्रिया। तो इस क्लास अब थैंक यू। आगे चल रहे हैं। ये क्लास के बारे में हमने थोड़ा सा जान लिया, और थोड़ा सा लिंक्स के बारे में, और जो थोड़ी सी ये एरोस बने हुए हैं, और इस तरीके से अगर आपने देखा हो कि यहाँ पे एक जरा डिफरेंट तरह का डायमंड बना हुआ है, इन चीज़ों को देख लेते हैं कि ये क्लास डायग्राम यानी यूएमएल में ये इन चीज़ों से क्या मुराद है। ओके, तो इंटरफेसिस की अब हम बात कर रहे हैं। जैसे ये इंटरफेसिस में देखें आप, फुल इंटरफेस, ये येलो में अगर आप देख रहे हैं इंटरफेस, फुल इंटरफेस है, फुल इंटरफेस व्यू है। क्लास रियलाइजिंग द इंटरफेस, जो क्लास या टाइमर क्लास का जिक्र हो रहा है। अगर आप देखें तो इस टाइमर क्लास के अंदर जो एट्रीब्यूट्स हैं उनका जिक्र नहीं है, और इसी तरीके से यहाँ अगर आप देखें तो इसमें मेथड्स का जिक्र है। तो ये इसकी फीचर्स हैं इस क्लास की, जिसका नाम टाइमर है। इसी तरीके से यहाँ एक वेक्टर क्लास है, और इसमें भी अगर आप देखें तो हमारे पास एक टिक के नाम से प्राइमरी एक इसके अंदर मेथड मौजूद है। अब हम सबसे पहले चूंकि इंटरफेस की बात कर रहे हैं, और इंटरफेस में अगर आप देखें कि इसमें 2 इंटरफेस की बात हो रही है, आई स्टॉप स्टार्ट और एक आई टिक इंटरफेस। अभी हम ये बात नहीं कर रहे कि ये प्राइमरी डायग्राम किस चीज की है, और इस डायग्राम में क्या चीज प्राइमरी प्रेजेंट हो रही है। अभी हम ये डायग्राम के कंपोनेंट्स देख रहे हैं, ताकि उन कंपोनेंट्स को हम समझ सकें और एक्सप्लेन कर सकें। तो इसमें 2 कंट्रोल पोर्ट का जिक्र हो रहा है, और अगर आप देखें कि एक जो कंट्रोल पोर्ट हमारे पास यहाँ मौजूद है जो कि आई टिक के नाम से है, और आई टिक के नाम से जो कंट्रोल पोर्ट है प्राइमरी ये क्लॉक पोर्ट है। इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि व्हाट इज द पोर्ट। पोर्ट का मतलब जैसे कि यूएसबी पोर्ट है, कंप्यूटर सिस्टम में होती है, और कम्युनिकेशन पोर्ट है। तो इसी तरीके से ये जब आपस में कम्युनिकेट करेंगे ना, जो 2 क्लासेस, तो वो क्लासेस किसी इंटरफेस के थ्रू कम्युनिकेट करेंगे, और इंटरफेस की जो बनावट है वो इस डायग्राम में हम सीखेंगे। जैसे कि यहाँ पे आई स्टॉप और स्टार्ट जो है इसके जो, और आई टिक, इसकी मदद से इस क्लॉक पोर्ट को डिफाइन किया गया है। पहले नोट पढ़ लेते हैं कि ए सिंक्रोनस इवेंट सिग्नल्स होते हैं,
और एरो जो है वो क्लास से इंटरफेस की तरफ जा रही होती है। तो अगर हम यहाँ से देखें तो जो एरोज नजर आ रही है, अगर आप देखें तो एरो जो है ये जा रही है टाइमर से एक और क्लास की तरफ, जो कि जिसके ऊपर हेड के ऊपर इंटरफेस लिखा हुआ है। तो इस इंटरफेस का मतलब है आई स्टॉप स्टार्ट इंटरफेस, यानी ये एक ऐसा इंटरफेस है जिसका तलक स्टॉप और स्टार्ट टाइप इवेंट से है। वेक्टर क्लास में देखें तो ये एक एरो बनी हुई है, तो एरो का मतलब समझ में आ गया कि एरो जो है ये एक इंटरफेस को पॉइंट कर रही है। तो पहले जो डायग्राम थी अगर उसको हम देख लें तो उसमें भी ये एरोज हमें नजर आ रही है। तो एरो जो है ये एक इंटरफेस को, ये आईटिक इंटरफेस है। सो दैट मीन देयर आर टू इंटरफेसेस एंड ओके, कोई क्वेश्चन भी आ गया हमारे पास। तो क्वेश्चन लेने से पहले थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं। तो पोर्ट, ताकि इस स्लाइड को हम कंप्लीट कर लें। पोर्ट के अंदर अगर आप देखें देयर आर टू पोर्ट्स, वन इज द क्लॉक पोर्ट एंड अदर इज द कंट्रोल पोर्ट। अब ये आइडेंटिफाई करनी होगी कि क्लॉक पोर्ट कहाँ है, टाइमर के साथ है, और कंट्रोल पोर्ट कहाँ है, ये वेक्टर क्लास के साथ है। बेटा पीछे से ऑन कर दो, ऑन करो सारी चीजें। Okay, thank you very much. असल में इसकी चार्जिंग जा रही थी। Okay. The last part is the clock port requires ITIC interface and offers the I-stop start. So clock port पे फोकस करें, it requires the ITIC. तो इसमें जो ये छोटा सा जो एरो की तरह का, यानी ये जो कप की तरह का निशान बना हुआ जो एरो की बैक साइड में होता है, तो ये रिक्वायरमेंट का है। So it require ITIC and it provides I-stop start. तो provides का मतलब ये कि there will be an arrow pointed to an interface I stop start and there must be, अगर हमें इससे कनेक्ट करना है, there should be some ITIC primarily interface जो primarily used to connect with this। अच्छा, ये कंट्रोल पोर्ट में रिवर्स होगा obviously। ITIC ये जो वेक्टर क्लास है, it will provide ITIC and it requires the I stop and start। So this is how the ports work and the interfaces are built। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ जो आप लोगों ने रेज किए हुए हैं। तो मैं ऊपर से स्टार्ट कर देता हूँ। सबसे पहले अब्दुल वहाब हैं। जी अब्दुल वहाब, आप बताइए, क्वेश्चन पूछिए। सर अस्सलाम वालेकुम सर, इसके हवाले से तो सवाल नहीं है, बस इससे थोड़ा सा आउट ऑफ कंटेक्स्ट है कि हमारे टोटल सेशन कितने हुए हैं, क्योंकि ये मेरा सेकंड सेशन। जी जी आप बोले अब्दुल वहाब, मैं सुन रहा हूँ। जी सर, मैं ये कह रहा हूँ कि ये मेरा सेकंड सेशन है ऑनलाइन का, तो इससे पहले हमारे और टोटल कितने सेशंस हो चुके हैं? इससे पहले टोटल आई थिंक 5 हो चुके हैं। आप मेरा क्विज ले रहे हैं। बहरहाल एनी हो, सवाल का जवाब देते हैं थोड़ी देर में, पहले दूसरा सवाल पूछ लें क्योंकि जी जी सर, श्योर सर, थोड़ा सा डिले कर लेते हैं। जी फरहान आप पूछे। जी जी सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो लेफ्ट साइड पे हमारे नोट लिखा हुआ है एसिंक्रोनस इवेंट सिग्नल्स, इसका क्या मतलब है सर? क्या दोबारा बोलो। ये जो नोट लिखा हुआ है हमारे पास यहाँ पे इंटरफेस वाली लेफ्ट साइड के ऊपर, ये इसके अंदर देखें आई स्टॉप स्टार्ट और आई टेक के नीचे जो नोट लिखा हुआ है एसिंक्रोनस इवेंट सिग्नल्स, इसका मैं पूछना चाह रहा था बेसिकली ये क्या चीज होती है और इसका क्या मतलब है? हाँ देखें, दो तरह के इवेंट्स होते हैं, एक होते हैं सिंक्रोनस और एक होते हैं एसिंक्रोनस। थोड़ा आसानी के लिए पहले मैं आपका सवाल जो है वो रिपीट कर देता हूँ कि फरहान ने ये पूछा है कि जो एसिंक्रोनस इवेंट्स हैं और सिंक्रोनस इवेंट सिग्नल्स हैं ये क्या है। देखें, सबसे पहले तो सिंक्रोनस इवेंट की बात करते हैं। जो सॉफ्टवेयर के अंदर हम सब रूटीन्स लिखते हैं जो इवेंट से लिंक होते हैं वो सिंक्रोनस होते हैं, और इसी तरीके से जिनका तल्लुक क्लॉक के साथ होता है, सिस्टम क्लॉक के साथ, वो सिंक्रोनस होते हैं। लेकिन जो इवेंट्स एक्सटर्नल होते हैं, एक्सटर्नल से मुराद अगर इंटरप्ट के कॉन्टेक्स्ट में बोले, एक्सटर्नल डिवाइस जैसे माउस का क्लिक है, कीबोर्ड का कोई की प्रेस हुआ है,
तो ये इवेंट्स जो है ना ये एसिंक्रोनस है, क्योंकि इनका जो है ना टाइमिंग प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। तो ये इस तरीके से है। तो अब ये जो क्लास टू क्लास कम्युनिकेशन है ना, उसको उसने डिफाइन किया कि दिस इज एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन, ठीक है ना, जनरली एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन। ओके फरहान, अब आपको समझ में आ गया है ये क्लास टू क्लास। जी सर जी, थैंक यू। अब हम अब्दुल वहाब के जो सवाल है उसकी तरफ चलते हैं, और इसके लिए मुझे थोड़ी देर के लिए जो है वो एग्जिट होना पड़ेगा इससे, और हम चलते हैं जो है वो सबसे आसान, चूंकि LMS पे लॉगिन करना पड़ेगा, तो गूगल क्लासरूम पे चले जाते हैं। और गूगल क्लासरूम उम्मीद है कि आप लोग देख पा रहे होंगे। और इसमें अगर हम देखें तो क्लास वर्क में अगर हम चले जाएं तो यहाँ पे आपको जो है वो 5 वीडियो सेशन नजर आ रहे हैं। आप देखें ये वीडियो सेशन है, रिकॉर्डेड है, हमारे आज 6ठा वीडियो सेशन चल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है वो प्रोसीड करते हुए चल रहे हैं। वीडियो सेशन 1 है, जैसे सर अदील है उनका आज पहली क्लास है, तो उनके लिए ये टास्क होगी कि वो वीडियोस को थोड़ा थोड़ा वॉच करते रहे। ये यूट्यूब पे हमने अपलोड कर दी हुई है, लेकिन ये हमने अनलिस्टेड की हुई है, ये पब्लिक डोमेन में नहीं है, अनलिस्टेड है। कोई जिसको लिंक मिल जाएगा वो देख लेगा। अगर क्योंकि पब्लिक भी कर सकते हैं हम, लेकिन वो क्वालिटी नहीं है। वो इसे क्वालिटी से मुराद ये कि हमारे पास कोई एडिटिंग की फैसिलिटी नहीं है, वीडियो को एडिट कर सके। उसमें से कुछ गैर जरूरी चीजें, जैसे ये जूम जो है ये बाज़ जगहों में ना ब्लैक बॉक्स बना देता है, वो हटा दें, वो थोड़ा सा हमारे उससे कैपेबिलिटी से अभी बियॉन्ड है। इसी तरीके से अगर आप देखें तो लेक्चर स्लाइड जो है ना वो हम जैसे जैसे बनती जा रही है ना वैसे वैसे हम डालते जा रहे हैं, वैसे वैसे हम डालते जा रहे हैं। कल वो चूंकि अब्दुल वहाब ने मुझे रिक्वेस्ट की थी, सर अब्दुल वहाब ने, वो कहने लगे कि सर कुछ लेक्चर्स जो है वो हमें डाल दें, कुछ जो है वो, तो फिर मैंने कल किसी टाइम में बैठ के तो कुछ चीज़ें ऑर्गेनाइज कर दी थी थोड़ी सी, ताकि ये चीज़ें थोड़ी बेहतर हो जाए। LMS में भी सेम यही चीज़ है। अगर आप LMS पे जाएंगे तो आपको रियल टाइम जो आपके उसमें डैशबोर्ड में आ रहा होगा, अगर थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो LMS। सर LMS में मैंने देखा था आपकी वीडियोस जो आप यहाँ पर 5 वीडियोस शो हो रही है ना GCR पे, गूगल क्लासरूम पे, तो LMS पे 3 वीडियोस शो हो रही है, वो तो मैंने देख ली थी यूट्यूब पे जाके। तो थोड़ा सा उसके लिए देख आपसे लें। असल में मेरे पास जो है वो LMS के ऊपर जो है वो 3 सब्जेक्ट नजर आ रहे हैं। एक नजर आ रहा है रियल टाइम एम्बेडेड सिस्टम्स, एक नजर आ रहा है मुझे सिलेक्टेड टॉपिक्स इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, और एक मुझे नजर आ रहा है सिलेक्टेड टॉपिक्स इन कम्युनिकेशन एंड आगे पता नहीं क्या लिखा हुआ, एंड सिग्नल प्रोसेसिंग होगा। ओके, तो सिग्नल प्रोसेसिंग, जी जी 3 नजर आ रहे हैं मुझे। तो अब आप चूंकि स्टूडेंट्स 3 डिफरेंट एरियाज से आ रहे हैं ना, तो मैंने क्या किया है कि इनके जो ये LMS CMS से अलग है, एक चीज ये याद रखिएगा, CMS से अलग है। तो इसमें इन्होंने कोर्स ऑफरिंग तो सेम दे दी है, तो मैंने इनके स्टूडेंट्स जो है ना जो इसमें इनरोल थे उनको इसमें से अनइनरोल कर दिए, और उसके बाद मैंने उनको इस रियल टाइम एम्बेडेड सिस्टम में इनरोल कर दिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो LMS है वो एक डिफरेंट व्यू है। जो आपकी मार्कशीट होगी ना जो CMS से जनरेट होगा जो इंफॉर्मेशन, वो वैसे ही इंटेक्ट है। ये सिर्फ मैंने अपनी सहूलियत के लिए किया, क्योंकि तीनों सब्जेक्ट्स को एक साथ अपडेट करना मेरे लिए एक काफी डिफिकल्ट वर्क है। अगर मैं सर पार्टिसिपेंट्स तो फिर आउटलाइन भी मर्ज हुई होगी, आउटलाइन भी मर्ज की गई होगी। आउटलाइन की अभी बात नहीं की मैंने, आउटलाइन के हवाले से आपका एक अच्छा सवाल है, 1 मिनट के लिए इसको सेट असाइड कर लेते जी सर। और मैं वो ये देख लेते हैं। इसमें देखें आपके साथों के साथों जो क्लास फेलोज है ना वो इसके अंदर मौजूद है, ठीक है ना। 8 पार्टिसिपेंट्स है टोटल इंक्लूडिंग माई सेल्फ, तो 7 के 7 ही मौजूद है। तो जब आप जाएंगे ना LMS पे तो आप इस सब्जेक्ट पे चले जाइए, इस सब्जेक्ट पे जाएंगे तो आपको फिर इसके अंदर जो है वो तमाम लेक्चर स्लाइड्स और ये जो ऑनलाइन इंटरेक्टिव सेशन मैंने कहा ये कल मैंने अपडेट किए और आज का अपडेट हो जाएगा। इस पे लिंक क्यों आ रहा है बताओ? हाँ, लिंक इसलिए आ रहा है क्योंकि ये इस पे से लिंक मुझे हटाना होगा, ये वो लिंक नहीं है, लिंक ये लिंक किसी वजह से आ गया इस पे, तो ये लिंक मैं हटा दूंगा इसकी वजह से।
क्योंकि ये वो लिंक नहीं है जो मैं देना चाह रहा हूँ। मैं ये वाला लिंक, इसको थोड़ा सा मैं चेक कर लूँगा। रात के किसी टाइम में मैं इसको कर रहा था, तो शायद कॉपी पेस्ट में ये कुछ और चीज़ें आ गई। एनी हो, इसको करेक्ट कर दूंगा। अभी कोई असेसमेंट तो हमने आपको दी नहीं है, तो ये चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी। ठीक है, कोर्स आउटलाइन भी नज़र आ रही है, ई बुक भी नज़र आ रही है। जी, उम्मीद है कि चीज़ें वाज़ेह हो गई होंगी। जी, आप कुछ और पूछना चाह रहे हैं? नहीं सर, बस नहीं। ओके, मेरे ख्याल में हम टाइम के लिहाज से थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं, लेकिन एनी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, इसमें गूगल में कुछ चीज़ें ज़्यादा हैं और एलएमएस में कुछ चीज़ें कम है, वो उसकी वजह कि वो अच्छा जो सर, सॉरी, बताएं। बस सर आउटलाइन का थोड़ा सा मुझे डाउट था, क्योंकि वहाँ पे एलएमएस पे जो अपलोड हुई है वो मैंने देखी थी, तो थोड़ी सी में कंफ्यूजन थी। तो बस यही था कि ये तीनों जो कोर्सेज हैं वो आपस में मर्ज हो रहे हैं या क्या हो रहा है? असल में जो सिलेक्टेड टॉपिक्स है ना, सिलेक्टेड टॉपिक्स जो है ना, उनका एक टाइटल होता है कोर्स का ना। सिलेक्टेड टॉपिक के अंदर जब आपकी मार्कशीट बनेगी ना, तो उसके अंदर लिखा होगा सिलेक्टेड टॉपिक्स और उसके आगे लिखा हुआ होगा रियल टाइम एम्बेडेड सिस्टम्स। अच्छा, ठीक है। हाँ, तो अब आपको मेरे ख्याल में क्लियर हो गया होगा। हमने भी सिलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ाया है, उसमें क्या नाम है, और सिलेक्टेड टॉपिक्स में हमने जो याद मुझे पढ़ रहा है एडवांस प्रोसेसिंग पढ़ाया था। जी सर, सिग्नल प्रोसेसिंग वगैरह और ये एम्बेडेड सिस्टम की बेसिक्स देखी थी हमने वहाँ पे। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा सा आगे चलेंगे। जी जी सर, श्योर। इसकी बात करेंगे स्ट्रक्चर। ओके, विकास का कोई सवाल है? अब सवाल लेते हैं। इस डायग्राम में अगर आप देखें तो सेंसर असेंबली की, और इसके अंदर अगर आप देखें तो आपके पास जो है वो 3 क्लासेस हैं। एक जो जो क्या कहते हैं, वो जो एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जिसकी मदद से डायरेक्शन को मेंटेन कर सकते हैं, और मिशन टास्कर है, ये इसके नाम है, एंड देयर इज ए सेंसर। और फिर उसके अंदर जो है वो स्ट्रक्चर दिखाए गए हैं। इसमें अगर आप देखें तो पोर्ट्स किस तरीके से जो है वो लिंक हो रहे हैं। एक्स पोर्ट है, इस तरीके से वाई पोर्ट है, एंड देयर इज ए डेटा पोर्ट, एंड देयर इज आल्सो ए कमांड पोर्ट एंड ए सेंसर पोर्ट। ये बता रहा है कि ये सेंसर के साथ लिंक है, ये बता रहा है कि ये कमांड के साथ लिंक है। तो इस तरीके से जो पोर्ट्स हैं ये आपस में एस्टेब्लिश हैं। और आप देखें कि क्लास विद इन क्लास और क्लास के बाद उसके अंदर जो फीचर्स, that means the attributes and methods, they are written. This is the example of a structured class which contain multiple classes. Okay, we have about 5 minutes left. ये एक वेंटिलेटर क्लास है, और वेंटिलेटर क्लास में अगर आप देखें तो इसके अंदर सेंसर और जो सेंसर जो है, यानी ये पोर्ट्स को रिप्रेजेंट कर रही है फिगर, जो अभी हमने इंटरफेस के अंदर जो है उसको जाना था। तो इसमें सेंसर पोर्ट है, और इसका अगर आप देखें तो ये जो ऑक्सीजन सेंसर है, यानी जो ऑक्सीजन की जो क्वालिटी है या उसकी जो परसेंटेज है उसको सेंस कर रहा है। अगर आप देखें तो ये प्राइमरी एक इंटरफेस को डिफाइन कर रहा है जो कि आई सेंसर के नाम से है, और यहाँ पोर्ट में वो इंटरफेस यूज हो रहा है। इसमें कुछ बिहेवियर और डेलीगेशन पोर्ट का जिक्र है। बिहेवियर पोर्ट और डेलीगेशन, पहले डेलीगेशन पोर्ट जो है वो प्राइमरीली बता रही होती है कि प्राइमरीली किस चीज की डायरेक्शन जो है वो प्राइमरीली क्या है। अगर आप देखें तो ये इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होने जा रही है। डिस्प्ले तो वापस इंफॉर्मेशन को नहीं भेजेगा ना, ये आमतौर पे ऐसा होता नहीं है। टिपिकल केसेस में हो सकता है जहाँ डिस्प्ले को मॉनिटर किया जा रहा हो, लेकिन आमतौर पर डिस्प्ले सिर्फ इंफॉर्मेशन को बताने के लिए कि जो है वो जो इंफॉर्मेशन जो है वो प्राइमरीली सेंसर पोर्ट से आ रही है उसको डिस्प्ले कर दो। तो इस तरीके से जो पोर्ट्स हैं उनको आपस में लिंक किया जाता है। और
and there are some relations which are used in the UML diagrams. There are different types of relations. अगर आप देखें तो association, generalization and dependencies. These are three major types. आगे फिर classification है. Association can be a simple association, aggregation and composition. और association relation is a link between classes. इसको अभी हम देख लेते हैं next diagram में. Aggregation is a special type of weak association, whereas composition is aggregation with strong association. और इसका एक डायमंड उससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको एक डायमंड फील्ड डायमंड से. एंड जनरलाइजेशन रिलेशन हैज अ डिजाइन टाइम इफेक्ट, यानी जब सिस्टम जो डिजाइन टाइम जो है उसके ऊपर है. डिपेंडेंसीज are abstractions binding, they primarily show usage and also the permission. इस तरीके से तो हमें समझ में नहीं आएगा जब तक हम डायग्राम ना देखें. लेकिन डायग्राम से पहले एक क्वेश्चन जो है वो अब्दुल वहाब कहना चाह रहे हैं, पूछना चाह रहे हैं. जी अब्दुल वहाब. नहीं सर, इस हवाले से तो मेरा कोई क्वेश्चन नहीं. एग्रीगेशन और कंपोजिशन वगैरह तो मुझे क्लियर है. ठीक है, इसमें अगर आप देखें चीज़ें जो हैं ये पहले तो देख लें कि देयर आर सम रोल नेम, कहीं पे डिफाइन होंगे कहीं पे डिफाइन नहीं होंगे. देन देयर इज प्राइमरली सिंपल एसोसिएशन से स्टार्ट करें ऑन द राइट बॉटम साइड. सिंपल एसोसिएशन, और सिंपल एसोसिएशन में अगर आप देखें सिंपल लाइन इज प्राइमरली ड्रॉन. और अगर लेबल दिया जाता है तो लेबल के साथ एक डायरेक्शन भी दी जा रही है कि ये इंफॉर्मेशन कहाँ से आ रही है. तो मिसाइल ट्रांजैक्शन जो है, ये जो क्लास है ये मिसाइल क्लास को प्राइमरली कंट्रोल डिलीवर कर रही है कि प्राइमरली इसकी डायरेक्शन ये है. और ये 1 to 1 है. इसी तरीके से ये 1 to 1 जो कंसेप्ट है ये मल्टीप्लिसिटी में आता है, और ये कंसेप्ट जो है ये 1 to 1 और 1 to many हो सकता है. जैसे यहाँ स्टैटिक देखे लगा हुआ है, 1 to many का कंसेप्ट है यहाँ पे. इसी तरीके से अगर आप देखें तो कंपोजिशन से पहले एग्रीगेशन देख लेते हैं. एग्रीगेशन में अगर आप देखें तो आपको एक जगह पे डायमंड नजर आ रहा होगा. एग्रीगेशन जैसे नाम से जाहिर है कि इट कैन प्राइमरली इट एक्सेप्ट डिफरेंट प्राइमरली एट्रीब्यूट्स जो कि इस पोजीशन क्लास के अंदर मौजूद है. समटाइम्स ओनली वन एट्रीब्यूट इज कमिंग, समटाइम मोर देन वन एट्रीब्यूट्स आर कमिंग टू दिस फ्लाइट पाथ. दिस इज अ वीक टाइप ऑफ एसोसिएशन. और जबकि अगर आप थोड़ा सा लेफ्ट साइड में चले जाए, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये डायमंड फील्ड है. डायमंड फील्ड मीन द कंपोजिशन आर द स्ट्रॉन्ग टाइप एसोसिएशन. स्ट्रॉन्ग टाइप एसोसिएशन मीन्स द इंफॉर्मेशन इज कमिंग विद, अगर 1 to 1 है तो इंफॉर्मेशन इज कमिंग फ्रॉम ओनली वन पैरामीटर इज कमिंग दिस साइड. ओके, तो इस तरीके से हमने ये देख लिया. जनरलाइजेशन इज प्राइमरली रिप्रेजेंटेड बाय द एरो, और इस सूरत में अगर आप एरो देखें तो दिस एरो इज प्राइमरली एज ए जनरलाइजेशन टाइप ऑफ